कुछ होने में और बहुत कुछ होने में इतना सा फर्क है, एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to everyone who have joined us today for our 303rd edition of Business Opportunity Over Chai. The brand which we are representing today is Sanskriti Awas, which is a reputed, recognized and reliable hostel for boys in Noida, which is also offering a FOCO model, which is the most demanded model by our investors. Now, with this, I would like to invite Ms. Sonia Chaudhary and Mr. Gaurav Maria to formally start the session. Over to you, Sonia, ma'am. Thank you so much, Shruti, and a very good morning to all our friends who have joined today's webinar. And I also welcome Reena ji, who has come today to present the business opportunity of a boys hostel by the name of Sanskriti Awas. This is a company based out of Noida, and they're looking at potential partners to invest in the business, where the entire operations would be taken care by the company, and the investment would be done by the prospective partner. At the same time, friends, I will also like to intimate you about some of the initiatives that Franchise India has been taking and some new initiative that we have taken in the month of June. And so we have started with a show which is by the name of Bharat Franchise Show. ये पहले जून से हमने शुरू किया था. And this initiative was taken क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, देयर डाइवर्स जोग्राफीज एंड जो भी कंपनी साथ हम काम करते हैं, दे ऑल्सो हैव अ वेरी लार्ज पोटेंशियल फॉर पेनिट्रेशन, बैंडविड्थ फॉर पेनिट्रेशन एंड ऑल्सो डिमांड बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड स्टेट्स दैट वी प्रेजेंट इन. सो ये 100 दिन का बैक टू बैक शो है. हर रोज हम तकरीबन 8 से 10 अपॉर्चुनिटीज हम लेके आते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन 7 एडिशंस ऑफ दिस शो एंड today being 8th, हमारा आज 8th edition है, and this edition today is happening in the city of Bangalore. तो आज हम Bangalore जाएंगे and we have close to 13 opportunities which are being presented today. और ये food में है, retail में है, F&B के अलावा हमारा service है, which is a very big industry, and some new industries and categories also that we have launched in this show. So anyone who is keen to also get registered for this show, आप register कर सकते हैं Franchise India Brands की Facebook page पे जाके. And at the same time, I will also share a link in the chat box where you can register for this event. And we also have started an investor advantage program, and under this program we advise investors in evaluating the right opportunities for them, जहाँ पे हम उनको एक assistance देते हैं, where we create very personalized and customized solutions for any investor जो explore कर रहे हैं opportunities को. And दूसरा जो investors अगर
decided, even if you have decided which brand you are going ahead with, and you want our assistance in deal structuring, that's also our team works with every investor to guide them in giving these solutions. Now, friends, without taking more time, I will now request Reena ji to come and present the business model. And Reena ji, we can put our presentation. आप शुरू कर सकती हैं. ये संस्कृति आवास हॉस्टल जो है, ये हम लोगों ने 10 साल पहले शुरू करा था। हम लोगों को ये लगता था, जब मेरी बेटी जो है हॉस्टल गई थी, तो मुझे लगा कि सभी बच्चों को एक अच्छे से हॉस्टल की ज़रूरत होती है, वर्किंग मैन हो या कॉलेज के बच्चे हों। इसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, हाइजीनिक फूड मिलेगा और हर तरीके की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जिसके लिए हमने इसका नाम भी रखा संस्कृति आवास, जिसमें संस्कार भी हम देते हैं और बच्चों को जो अभी एक कमी जो हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स बहुत पैसा खर्च करते हैं, बट उनके अंदर कल्चर नहीं है, बड़ों से बोलने का अदब या आप समझ लीजिए वातावरण, एक एटमॉस्फेयर नहीं है जिसके अंदर बच्चे डेवलप करें अच्छी तरह से। तो मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ बच्चे अलग-अलग कैटेगरी के आते हैं, अलग-अलग तरीके के आते हैं, जिनको हम एक ही कह सकते हैं कि एक ही माला में पिरोया जाता है। फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करे जाते हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छी तरीके से इनको रखा जाता है। स्पोर्ट्स भी इनसाइड, इंडोर, आउटडोर स्पोर्ट्स भी हम देते हैं इन लोगों को। Sure, Reena ma'am, thank you very much for a great introduction. Friends, will go through this presentation now, which will delve more in details about the concept of Sanskriti Awas and services that ma'am spoke about, and how we ensure the sanskar part and everything is managed well through this whole concept. A couple of more things. It is not only franchise-owned company operated. We are also looking at franchise-owned, franchise-operated approach, and also in some of the cases will also consider management contracts. So existing colleges, universities, where they want to outsource their hostel facility to Sanskriti Awas. We're in fact in discussion with few colleges in Greater Noida and Noida area for this sort of an arrangement. So all three opportunities are available: franchise-owned, franchise-operated, franchise-owned, company operated, and management contracts also. We'll talk about these when we get to that slide in this presentation. But first, let's start with this presentation on the brand. I will keep inviting Reena ma'am to share her views on each slide. We'll go through this in more of an interview sort of an arrangement, right? Okay. Sure. So here we start. So we have two sections in this presentation. We have two sections in this presentation. First is a great detail about the company, Sanskriti Awas, how it is set up, what is the procedure and processes that ensure safety, security for the boys. And it is one more thing, very important, it is not only college students. We have also extended this service to working men. Because both these segments, college boys and working men find it difficult to get a decent place if they're not able to get a hostel within the college, or their office has some setup like that. So that's the space we want to get into. And second section is of course the franchise proposal. We'll talk about multiple opportunities where you can associate with the company, right? So starting with first about Sanskriti Awas. Uh, as ma'am said, you're looking for, once again, I'll just hide this also. Yes. So looking for best but affordable hostel in Noida for college students, boys, and for working men. So this is what ma'am has done, over so many years to get to a stage where we're able to offer the best in the service category, but affordable hostel in the city of Noida, right? Uh, that's what we offer, a feel like home. Noida's best boys hostel, Sanskriti Awas. And this is not only that we are claiming it, but a lot of our students who stayed with us uh, and their parents also. That's the feedback that we have received.
Most of the parents, they come back to us and they share that they're very happy, feel very secured that their son is staying with Sanskriti Awas, staying under the guidance of Reena ma'am. So that's a moment which gives us a lot of pride in what we have achieved through Sanskriti Awas, right? So moving forward, okay. So message from ma'am. So I'd like to invite ma'am now to give us more insights about Sanskriti Awas and how this is set up. Please, ma'am. हाँ जी। संस्कृति आवास में अगर हमने जो हॉस्टल के लिए रखा बच्चों के लिए, उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि बच्चे कितने सेफ होंगे। सेफ होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम गार्ड्स बिठा रहे हैं गेट पर। गेट पे गार्ड तो होते ही हैं हमारे, लेकिन बच्चों के लिए हम आई कार्ड बनाते हैं, जिसके कारण आउटसाइडर हमारे यहाँ अलाउ नहीं होता। तो ये उनकी इतनी पेरेंट्स को इतना अच्छा लगता है कि ये सेफ्टी है इसके अंदर, कि गार्ड है और बच्चों को आ रहे हैं तो उनकी चेकिंग हो रही है, या वो कोई चीज बाहर से ला रहे हैं तो चेक हो रहा है। क्योंकि आज का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि पेरेंट्स जो हैं काफी डरे होते हैं कि बच्चे बाहर निकल गए तो ड्रग्स नहीं करें, ड्रिंक ना करें। ये हर पर्पस, मतलब हर पेरेंट्स का यही सोचना होता है। तो जब मैं ये वाली सेफ्टी बच्चों के लिए देती हूँ कि आपके यहाँ कैमरेज लगे हैं हमारी पूरी बिल्डिंग्स में, और कैमरूज के साथ कैप्चर करा जाता है, इन केस अगर बच्चा इस तरीके की कोई भी हरकत करेगा तो हम उसको रेस्टिगेट कर देंगे। तो ये सेफ्टी पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड होता है कि उनको खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि खाना हमारा बहुत अच्छा मिले। तो हमारी मेस इनसाइड होती है, सारे कुक्स अंदर ही रहते हैं। अभी कोरोना के टाइम में भी काफी सेफ्टी रखी गई है कि बच्चों को खाना प्रॉपर मिल सके और फ्रेश खाना मिल सके। चारों टाइम मील मिलता है हमारे यहाँ पर, जिसमें पनीर भी है, मीठा भी है और वेजिटेबल्स भी है। एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है जो पेरेंट्स को जरूरत है हमारे इसमें, कि बच्चे जैसे उन्होंने भेजे हैं उसी तरीके के बच्चे मिले। ये नहीं कि बाहर आके बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, खराब हो रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं रात को, या पढ़ाई से बिल्कुल अलग हट गए हैं। तो अंशुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें कोई भी काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम देश के हित में क्या कर सकते हैं, अपने समाज के हित में क्या कर सकता है, कि ये बच्चे जो हैं हमारा जी फ्यूचर है, हमारे बाद ये फ्यूचर है हमारे देश का। अगर हम इनको अपने लालच में अगर हम गाइड नहीं करेंगे और हम सोचेंगे सिर्फ रहना है, तो मेरे ख्याल नाम नहीं हो सकता जो आज संस्कृति आवास का नाम है, कि पेरेंट दिल से चाहते हैं कि बच्चा हमारे साथ रहे। जी, of course, ma'am. Right. So then, so friends, that's what Sanskriti Awas has achieved over the years, and ma'am rightly said, that's a moment gives us a lot of encouragement to continue to build more such setups in Noida and of course across Delhi NCR. And that's the reason why we are here today offering a franchise opportunity also. We see this as a great opportunity to set up multiple centers, and we'll talk about it in the next few slides. Okay. So set up in 2010, it's already been a decade where company is running this business. Is now a top player in the category hostels in the city Noida. Ma'am, I would also like to highlight here. What are the challenges that these boys or working men हाँ जी, हाँ जी। find and they're not able to find spaces? So please talk about this as well. चैलेंजेस। हेलो। Challenges for boys and working men to हाँ, find a डेफिनेटली space. डेफिनेटली बॉयज को रखना एक चैलेंज तो है ही अंशुल जी। बॉयज को रखना एक चैलेंज है, क्योंकि वो घर में ही नहीं सुनेंगे। आप पेरेंट्स से पूछिए, बच्चे जा रहे हैं लेट को आ भी रहे हैं, लेट आ रहे हैं तो लड़ रहे हैं कि जी हम तो, हमारा ऐसा ही एटमॉस्फेयर है। बट हमारे यहाँ एक चैलेंज होने के बाद भी मैं समझती हूँ बच्चों के क्लोज रहकर हम उनकी काउंसलिंग करें, या इस तरीके के बच्चे अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग जरूर करते हैं कि भाई वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। बहुत से बच्चे डिप्रेशन में भी जी होते हैं। मतलब मैंने देखो, इसमें बच्चों का सारा दोष नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो वही सीख रहे हैं ना जो उनके घर में दिया जा रहा है। लेकिन अगर इन बच्चों को अगर हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि वो डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनके घर में इतनी तवज्जो ही नहीं दी जा रही है, बच्चों पे उतना अफेक्शन, उतना प्यार ही नहीं वो हो पा रहा है ना।
तो इसके अंदर अंशुल जी क्या होता है जी कि बच्चे थोड़े डिप्रेशन में भी आते हैं, थोड़े मतलब कहते हैं इंट्रोवर्ट से होते हैं, बोल नहीं पा रहे होते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, अपने में इनसाइड रहते हैं। हाँ घरों जी में हाँ भी जी हम देखते हैं कि अपने घर में ही रह रहे होते हैं ये लोग ना, कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, जो आज का एटमोसफियर है। तो अंशुल उसमें क्या होता है कि हम उनको बहुत क्लोज रखते हैं। हर बिल्डिंग का 1 या 2 इंचार्ज होते हैं, रात के वार्डन्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, जी मैनेजमेंट टीम होती है। तो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी बात कहता है हम लोगों से, हमसे नहीं कहेगा। तो यंगस्टर जो हमारे ऑफिस की मैनेजमेंट टीम है वो उनको क्लोज रखती है, जिससे कि हमें पता चलता रहता है कि बच्चा कहीं मिसगाइड तो नहीं हो रहा। और जो थोड़े से भी डिप्रेशन हाँ में जी होते हैं तो उनको जब एक खुला एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ उनको बोलने का अपना राइट्स होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट होने लगते हैं धीरे धीरे हमारे यहाँ पर। वही फेस्टिवल सेलिब्रेशन में जी इन्वॉल्व होते हैं, वही प्लानिंग करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई का बोझ लेकर जो बच्चे चलते हैं ना, वो सक्सेस नहीं हो सकते। हमें उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देना है जो वो इंडिपेंडेंट अपने पैर पे भी खड़े हो सके। अगर मान लीजिए जॉब्स नहीं जी है तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो आगे बढ़ सके। उसके लिए हम बहुत बार सेमिनार लगवाते हैं। अब टाइम्स की कैरियर लॉन्चर की क्लासेस हमारे यहाँ लगती हैं ताकि कॉम्पिटिटिव बच्चा रहे। और कुछ छोटे मोटे जी स्टार्टअप भी करवाने की कोशिश करते हैं। कि संस्कृति आवाज सिर्फ एक ये नहीं है कि हमने पीजी खोल दिया और हम पीजी में रख रहे हैं, दैट इज नॉट अवर मोटिव। हमारा मोटिव ये है ही नहीं किसी भी तरह से। और अर्निंग करना भी कोई ऐसा हाँ मोटिव जी नहीं है कि जब आप बिजनेस करेंगे तो अर्निंग फेमस होंगे तो अर्निंग अपने आप होती है। सबसे पहले हमें हाँ जी। So I बेसिक्स think that समझना है is कि बच्चों को sure. हमने सेफ रखना है या उनको एक ब्राइट फ्यूचर की तरह एक अच्छा फ्यूचर भी देना है उनको हमने। जी जी उसके लिए तो आप कंपटीशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए अरेंज कर सकते हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज कर सकते हाँ जी हैं। हाँ जी और 4 साल तक हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं, हम प्लेसमेंट के लिए भी उन्हें आगे बढ़ाते हैं कि प्लेसमेंट की कंपनीज को भी लाते हैं जिससे कि बच्चे आगे कैरियर को भी बढ़ा सके अपना। तो एक पेरेंट्स को क्या चाहिए, ये उनके शायद कोई भी नहीं कर सकता जो हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं। हाँ जी। सो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रीना मैम ने अभी ये हाईलाइट किया है, you know, and that is a very good, very strong difference between a PG setup, paying guest setup, and a hostel setup that Rina ma'am is running. एक बच्चे को सभी तरह से डेवलपमेंट पर उनकी हेल्प की जा रही है। इट इज नॉट ओनली यू नो कि बच्चे एक रह रहे हैं साथ में, बट उनके करियर काउंसलिंग, उनका एजुकेशन, उनकी करियर प्लेसमेंट्स, सो सभी तरह से मैम हैज मेड एन एफर्ट टू इंश्योर दैट किड्स आर एबल टू get best out of this. ये क्या हुआ? Okay. So you know, the idea is to ensure that kids are able to do best staying with us. And as I said, you know, this is a very good facility that ma'am has created for. Again, I'm saying this is for boys students and working men. So very clearly, not this service is not for student girls and working women. You know, because they do have a lot of options. Otherwise, also, you would see many PGs, many other facilities available for female females particularly, right? But the opportunity here is for the boys and working men, which do find it challenging to find a safe, secure place to stay, right? So next, ma'am, we'll also like to talk about some of the processes and systems that you have created, which ensure you know that students feel very safe and all, right? So like we have, you already mentioned few of those, like presence of the management team, the staff, you know, not allowing students to come back after 10 p.m. You know, parents visit allowed and they can stay at the campus itself, and many other things, right? Ma'am, very important aspect that we should talk about here is also your outsourced vendors and how you evaluate them, how you onboard them. Like you have, I've been to your center and I know that you have outsourced the kitchen part, you've outsourced the site maintenance and many other functions. So please talk about that.
मैम आप म्यूट पर हैं प्लीज। ओके, हेलो, हाँ जी हाँ प्लीज। हाँ हाँ जी प्लीज, हाँ जी। आप तो वेंडर्स के मैम लिए बात कर रहे थे? हाँ हाँ जी, जी वेंडर्स की मैं बात कर रहा था, प्लीज थोड़ा वेंडर्स के बारे में बताएं, कैसे आपने पूरा मैनेजमेंट सेटअप किया है। मैनेजमेंट का बता यू नो। रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। वेंडर्स में देखिए, एक होता है हमारा हाउसकीपिंग का। हाउसकीपिंग के लिए हमारे वेंडर जो हैं, उसके अंदर जो बॉयज हैं, जो वर्किंग बॉयज होते हैं, काम करते हैं, उनको हम एक रजिस्टर देते हैं कि आप जिन जिन बच्चों से सफाई होती है उसको, मेरे यहाँ 700-800 बच्चे, 700-800 स्टूडेंट्स हैं, तो एक एक से तो बात करना थोड़ा टफ होता है, तो हमारे रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं और एक इंचार्ज होता है जो मेरा पर्सनल होता है वेंडर के अलावा। तो शाम के समय में वो देखता है कि कितने कमरों पे बच्चों से साइन हुए हुए हैं। तो इसमें कई बार होता है बच्चों से जिद करके करवाते हैं, तो हमें पता चल जाता है, हमें व्हाट्सएप आ जाता है बच्चों का कि हमारी सफाई हुई है या नहीं हुई। तो ये मैनेजमेंट हम पूरा एक वेंडर को देते हैं कि आप सफाई से लेकर मटेरियल से लेकर सब आप करेंगे और एक रीजनेबल रेट पे करेंगे। इसमें ये भी है कि जी रेगुलर वे में बच्चों के कॉलेज अलग अलग हैं, अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, कोई 4 दोनों बजे आ सॉरी। रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, तो हमने shift बना रखी है कि बच्चों के लिए आप हर समय अवेलेबल होंगे। 4 आप मॉर्निंग में आ जाएं, फिर 4 थोड़ा और 2 घंटे बाद आए, फिर 4 और, ताकि रात के 8 बजे तक आपको बच्चों के रूम्स को साफ करने के लिए प्रॉपर वे में साफ कर सके। जो बच्चा होगा तभी सफाई हो सकती है ना रूम की। हाँ जी मैम राइट। हाँ, इसके बाद हाउसकीपिंग के बाद एक वेंडर आता है हमारा, फूड वेंडर। फूड फूड है वेंडर हाँ जी। हमारी, हाँ जी, इसमें भी एक मीटिंग होती है हमारी कि बच्चे क्या खाते हैं। पहले हम 2-3 हफ्ते उन पे छोड़ देते हैं बताकर कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए। पहले हम देखते हैं कि वो किस तरीके का खाना खिला रहे हैं। नो डाउट हर को अपनी अर्निंग करनी है, बेटर करता है, फिर भी कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स आती हैं। कोई जी पूरी खाता है, कोई पूरी नहीं खाता, कोई ऑयली ब्रेकफास्ट करता है, कोई ऑयली ब्रेकफास्ट नहीं करता। ऐसे बहुत हाँ घर जी में ही हाँ हम जी 4-5 लोग होते हैं, तो वो चॉइस रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग मीटिंग करके बच्चों के लिए और वेंडर को बिठाकर बच्चों को भी बिठाया जाता है कि आप क्या क्या जी पसंद कर रहे हो, इसमें से आपको क्या पसंद नहीं आता जो ये टेस्टी नहीं बन पा रहा। तो हमें एक्चुअल में, मेरे को 10 साल हो गए, मुझे लड़कों की, बॉयज की ना फूड क्या खाते हैं उसके बारे में काफी समझ आ चुका है, तो हम लोग बनवाते ही ऐसा है जो लड़कों को पसंद आए काफी। जी तो जी लेकिन हमारी मीटिंग वीकली, वीकली तो नहीं कह सकती मैं, मंथली, क्योंकि बच्चों पे इतना टाइम तो होता नहीं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। तो हम एक जी नोटिस बोर्ड लगा देते हैं कि आज मीटिंग है, आप लोग बता सकते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग मैं अपने साथ रखती हूँ, ताकि, क्योंकि वेंडर से बोलना बच्चों का बड़ा मुश्किल होता है ना, उनसे खाना खा रहे हैं उनसे डायरेक्ट बोले। तो पहले वो हाँ जी मुझे हाँ जी का बताते, तो उनके फेस से पता चल जाता है कि बच्चे कंप्रोमाइज करके तो नहीं खा रहे, उनको मिल्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दूध जी मिल रहा है, दही मिल रहा है, वेजिटेबल्स ग्रीन मिल रहे हैं या खाली आलू भर रहे हैं। ऐसे, क्योंकि हॉस्टल के नाम पर ये बहुत ही चीज आती है कि खाना अच्छा नहीं है, मिक्स कर दिया, पुराना दे दिया, हाँ एक रात जी का रखा दे दिया। वो हम लोग बिल्कुल क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए मेरे मैनेजर होते हैं। फूड कंट्रोलर भी रखती हूँ जो कि फूड को कंट्रोल कर सके कि खाना कैसा जा रहा है। जी इसी तरह जी फेस्टिवल्स वेरी होते हैं इंपॉर्टेंट उसमें- पॉइंट आई थिंक। And a very important point, though ma'am has outsourced the services like food, maintenance, even gardening is outsourced, but ma'am has maintained a very close eye on the quality, and the menu, what is being served. बच्चों का पूरा ख्याल रखा हुआ है in the sense कि उनको क्या चाहिए, वीकली मेन्यूज, डेली मेन्यूज बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं, and हाँ accordingly the price points are discussed with the vendors, negotiated हैं, and ये एक एडवांटेज है जो हम अपने फ्रेंचाइज पार्टनर्स को भी एक्सटेंड करना चाहेंगे. All our vendors who are working with us हाँ would be जी, available for our franchise partners to also associate with. क्योंकि वो संस्कृति आवाज के रूल्स रेगुलेशन जानते हैं। हमारे वेंडर्स जो है ना, वो मैंने इतना स्ट्रिक्टली कर हाँ जी रखा है कि वो मेरे रूल्स रेगुलेशन जानता है। अगर मैं कोई नया वेंडर रखूंगी, शायद उसको फिर मांझने में टाइम लग जाए, उनको समझाने में, लेकिन ये वेंडर्स जो 10 साल से हमारे जी साथ हैं, जी ये आंखों के इशारे से समझ जाते हैं कि फेस्टिवल्स में इनको क्या क्या देना है, होली है तो क्या देना है, नवरात्रे हैं तो कूटू का खाना देना है, बच्चों की लिस्ट बननी है व्रत की। तो हमारे यहाँ बच्चे व्रत भी रखते हैं, नवरात्रों के भी रखते हैं। हाँ जी आ, हाँ जी, हर दिवाली भी, मतलब हर फेस्टिवल को हम बच्चों के लिए सेलिब्रेशन, होम अवे होम, इसका नेक्स्ट नाम हम दे सकते हैं कि घर से दूर एक घर, हाँ होम जी अवे होम, जी. यही हमारा So friends, you will note, that services are outsourced, but ma'am is into details very minutely,
and बहुत closely उनको monitor कर रहे हैं and services execute कर रहे हैं, right? And all the vendors are there with ma'am for all 10 years now, 7, 8, 10 years. They understand Sanskriti Awas culture. They understand the value proposition, and they want to work with us over with all our franchisee partners as well. So very important aspect this services are also, which also means that staff requirement at your end becomes minimal. So all the vendors are outsourced. What you need to do is probably put one or two managers who help you coordinate with the vendors, right? Yes. So you don't need to have a gardener with you. You don't need to have a full kitchen staff with you. Just one manager who can take care of all the vendors. So Yes. that is very efficient way of managing the complete operations. Right. इसके लिए आपको अपनी सरदर्दी करने से बहुत बेटर होता है। कई लोग किचन खुद संभाल रहे होते हैं, मैं देखती हूँ वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं करते। हम लोगों ने सारे आउटसोर्स कर रखे हैं, इवन लॉन्ड्री तक को भी। लॉन्ड्री भी जी. हमारी आउटसोर्स है। लॉन्ड्री आउटसोर्स होने के कारण क्या है कि Right. अगर कोई कंप्लेंट है, बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप कर दी, तो मैं तो वेंडर को ही बुला लूंगी ना सीधा, ऐसा क्यों चल रहा है। अच्छा, अगर हम अपना करेंगे तो एक लालच रहेगा कि अपनों से बच्चों से पैसा ले लिया, आप थोड़ा कमी बढ़ती करते रहे। बट मेरे लिए ये चैलेंज बच्चों के लिए भी होता है कि भाई सही चीज मिल जाए, और वेंडर्स के लिए एक चैलेंज होता है कि अगर बच्चों जी. ने कंप्लेंट कर दी तो मैडम अगले साल हमें नहीं कंटिन्यू कर पाएंगी। तो हाँ जी. बच्चों की भी So कंप्लेंट that's also important. Vendors be they're always in the performance pressure because they want to continue with the brand, and so they always offer their best service, right? Sure. Ji. So moving to next few slides, I think we'll have some pictures. First, we'll look at some of the facilities that Service Awas offers to the students, starting with beds and mattresses. Of course, it's a basic. Cupboards with lock, free Wi-Fi, placement assistance that ma'am has spoken about, housekeeping staff, cafeteria. All this is laundry is now outsourced. Gym is also there. Geyser facility. So some of the basic functionality that has to be there, but some other slightly more elaborate services like gym, cafeteria, English conversation, spiritual and yoga sessions. So all that is also being done as we spoke earlier. The idea is to not only offer a residence but also make it feel like home, where the parents are also happy and the student who's staying with us is also happy, content. He's coming back from his college in evening and he's happy to come back to Sanskriti Abbas. He knows that he's going back to his home and he'll be happy about it, right? Uh, so here are some of our pictures from our center. This is a premium room facility. As you can see, very neatly done rooms and washroom setup. We also have a dormitory setup where 2, 3, or 4 students can stay within one room. We'll come to the price points in my financial slide. Please have a look at the pictures. So as I said, this is a premium room. This is a 2 students facility, and then we have 3 or 4 student facility also. We also do single room, single occupancy facility as well. Some of our common areas, this is our front office reception desk. You can see the gallery in the hostel, the staircase. So very neatly maintained. Again, as I said, maintenance is outsourced. So that maintenance vendor is always under performance pressure. They should not be receiving any complaints. So very neatly done. This is the kitchen and cafeteria service. Again, you would see students and even workers are all wearing masks, and again, the food is being served. Um, right, that's our gym facility. Not very fancy, but something that serves the purpose. So students don't have to go outside, spend extra money on going to gyms. And they can use the facility, basic facility. Yet it serves the purpose. You can see the treadmills and weight station. So that is good enough for students at that stage. Uh, Ma'am spoke about festival celebration. So this was Lori being done, then Christmas, then Diwali, Independence Day, and many other festivals. So similarly, all major events, major festivals in the year are celebrated. We get a good together. We organize a get together, and functions are very well celebrated here.
some of the testimonials, as we've been talking about this all along, not only from parents, but also students while they leave us after they've completed their education and everything. So very kind words from the patrons. So this brings us to our second section, which is franchise proposal. So few things. One, this is a Sanskriti Awas hostel, not a PG, a hostel where you're looking at a large facility. Though ma'am has a facility that can accommodate 600 students. For our franchisee setup, we're looking at smaller setups, about 200 students capacity. Uh, then a lot of processes, systems in place. Most of the services are outsourced, but very under control, minutely managed. So there is always a top performance by the vendors, right? Students are all happy, and it gives them a feel like home feeling while they come back to their rooms in the evening. So a great setup. And now we talk about franchise proposal. As I said, we're looking at all three options with this, starting with FOFO, which is franchise owned, franchise operated. So if you are a business, a building owner, uh, which can be converted into 50, 60, 70 room setup, where we can accommodate about 200 students. So that can be converted into a hostel very nicely. Similarly, FOCO model, where if you have a building, or we can rent a building, lease a building, invest with us, company can take over the operations, and we can look at paying a fixed payout to you, which ensures reasonable returns, ROIs for you as well. Third is, of course, management contract. This is for running hostel, which may want to offer a management contract to the company. So all three options are available. New setups under FOFO, conversion under management contracts, and new setups under FOCO also we can be done. We're also open to do education institutions who have their hostels but are not able to manage them. So we can take that under management contract as well, right? Key support functions that company would be able to bring in. I'll come to the financials in the last slide, but we first look at other opportunities. Hostel management expertise. So ma'am has been running this hostel, with 600 students over 10 years now. So great experience and expertise captured over all these 10 years, which would be, of course, extended to you. Outsourced service partners, service vendors, as we spoke about that in length. All our vendors with us for over 10 years now and are very well settled, very well negotiated in terms of the price points and services. So that can be extended. Marketing and customer pull, of course, Sanskriti Awas is a very well respected name in this category in Noida and NCR overall. So that benefit you can, of course, leverage on. Price points, yes. So because of our name and experience, expertise, we are able to charge a slight premium in the market. That advantage also we can pass on to you. Strategic tie-ups with education institutions and corporate. Already company is in discussion with many colleges, institutions across Noida, Greater Noida, across NCR. So that association can be extended to you, where you can set up a hostel nearby and use our reference to get students from there. And of course, available for FOCO management contracts apart from an FOFO arrangement. So overall, a complete package that Reena ma'am is able to offer you, basis her experience and expertise built over 10 years. Uh, you know, Moving to the next slide. Uh, Great reasons to partner, of course. As we've discussed, India is a young country. Significant job education opportunities available in metros and tier one towns. And that's what makes people from tier two, tier three, even villages, rural areas, they shift to metros and tier ones, but then they find it very difficult to, get a respectable residence at an affordable price, right? So that's the opportunity that we want to leverage on, and not only students but also working men.
this opportunity is available for them also, right? Uh, PGs, of course, they do not offer sufficient value in terms of safety, security, services, home-like environment, and price points. So all those aspects, we are able to offer an upper hand on a PG, right? So that encourages a lot of students and working men to shift to a hostel and not stay in a PG, right? These are some of our social media campaigns. Leaving your city, looking for a coolest hostel in Noida, our place, your home. Are you looking for a hostel having secure, comfortable, healthy environment? Uh, Looking for a best boys hostel in Noida? A perfect stay like your home. So these are some of our social media campaigns that company has been running, both Facebook, Instagram, and alike. And that's what we continue to do. We'll of course introduce other addresses as well. So that brings us to probably a very important slide, which talks about the financial. What do you need to invest to start a Sanskriti Awas facility? We start with a 16,000 square feet property. This is 16,000 because we are also looking at offering a large play area, plus building, plus office and everything. 16,000 square feet property, which can be converted into 70 to 80 rooms facility, which, given the right mix of the rooms, we should be able to accommodate between 170 to 200 students in that facility, right? Uh, an initial investment of 25 lakhs, which is majorly split into three. One is facility revamping, about 11 lakh rupees. So 10 lakh is revamping cost, 1 lakh is our signage, uh, 10 lakh rupees on equipment, which means putting up some rooms converted into air conditioner. Uh, we also put refrigerators, TVs, and many other things, right? And a franchise fee of 4 lakh rupees. So that's the initial investment, 25 lakhs. It would, and you can sense from the numbers that it would also mean that it is not 25 lakhs is not fixed. It depends on the sort of property we take up. It can be done at lower value. It may go slightly higher as well. So depending on the property, we believe uh, around 25 lakh rupees is what we need to invest to get a property as per brand guidelines, right? But don't go by this number 25. It can be 20. It can be 30. It all depends on the sort of property we get, right? In terms of the annual revenue, rooms mix of 75. Here we have taken a facility that can accommodate 170 students. Single rooms just 10. Double occupancy room 35 at 13,750 per month. Triple occupancy rooms 30 with 9,000 rupee per month fee. So on the current fee structure and the rooms mix, we have an annual revenue potential of about 2.5 crores. That's the annual revenue potential of 2.5 crores. Of course, if we change the room mix, the combination goes higher. So if you want to do more single rooms, do 100 students, do more single rooms, the revenue can go higher. Inflation adjustment of about 5% annually is what we've been able to do. So given that is also done, so over 5 years, this 2.5 crore potential actually goes up to 3 to 3.2 crores by year five, right? That's just plain inflation cost. We also need to look at what is our enrollment year on year. But on an average, between 2.5 to 3 crores is our annual number that we can look at, right? Key operational expenses. One is royalty, of course, which is 5% you pay to the company. And this we're talking about FOFO model only. We're not getting into what is FOCO or a management contract financial would look like. We can discuss that once we do the independent franchise meet next week, and one-to-one cases. We can discuss those structures also. This we are discussing for franchise owned, franchise operated financials. So a royalty of 5%. Payout to outsourced vendors, this is 24%, and this covers all our vendors, kitchen maintenance, gardening,
security, laundry, all covered under this 24% cost, right? Local marketing fee of 1%, which you would be doing. Payout to colleges 2%. That's a sort of a kickback we need to give. We typically pass on to the admin department to get an entry, right? And that remains a constant month-on-month payout. Utilities expenses 10%, staff about 10%. As I said, not very heavy on staff requirement because most of the services are outsourced. What you need to have is probably wardens, a couple of management people who can take care of the vendors, and everything else is outsourced, right? Rent is what we have looked at is 9,000 rupee per room per month. So this is if you have the property on lease. That's an average rent we see in Noida and Delhi NCR. This is 9,000 rupee per room per month. And I'll tell you, this is the rent is per room, not per bed, right? So we do have a high mix of dual occupancy and triple occupancy also. So even for that, the room rent is 9,000 rupee average, right? So for example, in this facility, 75 rooms are created, right? So you pay rent on 75 rooms while you collect fee per student. So that understanding we need to build. The rent is per room basis, while the fee collection is per student basis, right? So even a triple occupancy room where you're collecting 27,000, the rent is still 9,000 rupees for that room, right? Also very important aspect, there is also a collection from students about 25,000 monthly towards electric bill. So this typically takes care of our air conditioner cost because some of our rooms are air conditioned. People also use common area facilities, so they pay for that and all of that. So about 25,000 rupee monthly is what we're able to collect from the students on that part, which is of course adjusted in the utilities expenses, right? So overall, if I look at it, a 5-year cumulative EBITDA, I'm saying 5-year cumulative EBITDA of about 1 crore. So you're investing 25 lakh rupees today, but over 5 years, there is a potential to get a net earning of 1 crore rupee, which is 4x of your initial investment. Uh, Overall, a payback in 33 to 36 months. That should be months, not years. Payback in 33 to 36 months. So under 3 years, payback is achievable. While we're looking at a contract term of 9 years. We have looked at 9 years because a lot of buildings that we get on lease are for 9 years, right? So both the contracts would run parallel. Your property lease and this franchise agreement both are for 9 years. So again, I'll repeat: a 25 lakh rupee initial investment, a potential to collect 2.5 crores annually, and 5-year cumulative EBITDA potential of 1 crore. That's a net earning 1 crore cumulative over 5 years with an initial investment of 25 lakhs. So that's 4x of your investment easily that you can do. A payback about 33 months or so, a contract of 9 years. So in first 3 years, when you recover your initial investment, you have next 6 years to continue to make money out of the system. And by the time you get to year 3, year 4, the occupancy also we get to we get very close to getting 100% occupancy as well. So that's when you start hitting 3 crore sort of revenue every year. So that becomes very interesting after the first couple of years are done. Right. So this is a business which is staying longer in the business makes more sense. Maybe year 1 would be a little bit of a struggle, little bit of a constraint because of the occupancy would not be there. You may start at 50%, though it is profitable in year 1 also at 50%, but you may not be able to make any profits. But year 2, 3, 4 onwards, you are going to make a lot of money from this business because the revenues are stabilized, your expenses are stabilized, and you're looking at absolute clear profitability from the business every year. Ma'am, your comments please on this. हाँ, अंशु बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करा है। इसी तरीके से हमने वर्क Sure, शुरू ma'am. कर स्टार्टिंग में छोटी सी इन्वेस्टमेंट से करा था, बट हमने देखा कि हमने क्वालिटी को मेंटेन करा, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करा और पेरेंट्स के दिल में एक जगह बनाई। तो आज ये अर्निंग जो आप बता रहे हैं डेफिनेटली इसी तरीके से अर्निंग होती है। बहुत जल्दबाजी नहीं जी. करनी, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पेरेंट्स के लिए और उस एटमॉस्फेयर में
उस कॉलेज में जहाँ पे भी आप लोग खोलेंगे, वहाँ पर आपका कॉलेज पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉलेज वालों को भी, कि हाँ, ये जो हॉस्टल खुला है, इसके अंदर क्वालिटी को दिया जाएगा पूरी तरह से। तो डेफिनेटली इस रिटर्न पे आप आ जाएंगे कि इतना आप अर्न कर सकते हैं। जी, sure. So, so that's our last slide. What we've also seen in the market, that 75% people who move from smaller towns, tier 2, tier 3, even from rural areas, when they come to metros like Delhi, they start feeling this homesickness, very quickly. But what at Sanskriti Awas, that's a feeling that we've been able to manage very efficiently. And a feedback that we've got from the parents, from every student, that they feel like home at Sanskriti Awas. So with that, I would like to now invite Sonia ma'am for her comments and investor discussions. Over to you, ma'am, please. Thank you so much, Anshul, and thank you so much, Reena ji. I think it was wonderfully explained, the presentation, taking all aspects described in detail, including the investment and operating expenses. And couple of things which I like to maybe add and recap the entire presentation that we gave. So if you look at, friends, the opportunity of hostel like this, there are more and more people who are moving to big cities for education and jobs, and to cater to the needs for new migrants, especially millennials, which are moving to big cities like Delhi, Bangalore, Bombay. Co-living hostels, student living, professional living have become very, very important. And not only a lot of private players, but also this is also a big thrust for the government and to come in. And these outfits are offering a lot of services which are better organized and structured. So even if you look at the market, while we might debate there are many players in the market, but I would say this market is very large enough to have a decent supply. So there's more demand than the supply currently in the market. And India, as per some of the stats which I was reading some time back, India has almost about 35 million students alone in the higher education, but only 17% have hostel beds. For every 6 students who are enrolled for higher education, only 1 bed is available. So this is a very important, metrics, and there's a bigger, I would say, supply potential, and especially for cities like Delhi NCR, where Reena ji is already running one. And India being a very big value market, and especially most of these stays, yeah, professionals ka karte hain, jobs ka karte hain, these are long-term stays, which can start as small as maybe 1 year and go up to minimum 3 years. सो पांच ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी टारगेट ऑडियंस के लिए, चाहे वो हमारा प्रोफेशनल है चाहे स्टूडेंट है, विच आर बिकमिंग एक्सट्रीमली क्रिटिकल व्हेन दे एनालाइज द नीड. First and foremost is affordability. They need to have affordability because it is not a day stay, a month stay. They're looking at longer duration. Second, they're also looking at convenience. And third, which is very important, is also location and facilities. It has to be near to the college hubs, or it can be very close to the hubs, which are corporate hubs for professionals. And fourth thing, which is very important, is collaboration and sharing of interest. Jo Reena ji ne baat ki thi, lot of people look at places where they can have collaboration and their interest with similar counterparts can be shared. And that is very important for being a part of feeling and being a part of a community at large. So with this, friends, while I'll ask all of you to put any questions that you want to in the Q&A box, and we'll take all these questions one by one. So रीना जी मैं शुरू करती हूँ. So हमारा जो हमने डिस्कस किया, we have talked about, हमने एक ही मॉडल फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो मिनिमम एरिया 16,000 स्क्वायर फीट का होगा, एंड जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारे केपेक्स में जाती है, एंड सम पार्ट ऑफ दैट गोज एज अ पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइज फीस, एंड वी टॉकिंग अबाउट 75 रूम मिनिमम एज अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इफ आई टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल टुगेदर, जो भी हमारे एरियाज हैं, अगर आप थोड़ा बहुत बता सके, if the area is at maybe a strategic spot or a location, थोड़ा बात इस एरिया का कम ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है, एंड व्हाट डू यू थिंक शुड बी द मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग मैक्सिमम थ्रूपुट. जैसे अगर हम 16,000 की बात करते हैं, अगर 10,000 स्क्वायर फीट की भी जगह है बट स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, क्या ऐसी लोकेशंस हम एंटरटेन करेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से ऑफिसेज हैं मेंस के लिए या कॉलेजेस हैं,
और उसमें कितना बच्चा आउट ऑफ स्टेशन का है। तो अगर छोटा भी है, देखिए किसी को खोलना है, संस्कृति आवास में ये है कि आपको खोलना है और आप चाह रहे हैं तो हम पूरा कॉपरेट करेंगे, क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे जब आपका देखा जाएगा कि आप 100 बच्चों पे कर रहे हैं या थोड़ा कम एरिया लेके कर रहे हैं, थोड़ा कम रूम्स लेके कर रहे हैं, तो भी अगर आप फेमस हो जाते हैं एक जगह पे, तो वहाँ के नियर बाय जितने भी कॉलेजेस होते हैं या थोड़ा सा दूरी पे आउट ऑफ वे जाकर भी होते हैं, वो भी आपके यहाँ रहने आते हैं। और इसमें यह है कि कम जगह, अगर कम कमरे हैं, मान लीजिए कोई बिल्डिंग इनको मिल गई जो कम कमरों की है और वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वी कैन डू दैट, क्योंकि उसमें क्या है कि कॉलेज के जितने बच्चे आएंगे, मान लीजिए 100 बच्चे आने हैं, आपको 50 की जगह मिली है या 60 की, तो जब बच्चे मिलेंगे तो आप और बिल्डिंग भी ले लेंगे, काम नहीं होता। और अपनी बिल्डिंग है तो जितनी बिल्डिंग है उसको हम बढ़ा तो सकते नहीं, लेकिन हाँ जितने बच्चे उनको हम रख सकते हैं। तो ये डे बाय डे पता चलेगा कि जैसे मैंने शुरू में 250 बच्चों का स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया मैंने, फिर मैं देखा मैं फेमस हो गई हूँ, तो मेरे बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं, 700 भी हो गए, 800 हो गए। उसमें हमने एक चीज और करी थी कि हम पुराने बच्चों को भी इतनी अच्छी तरह रखते थे कि वही 4-4 साल तक रह गए, तो नए बच्चे धीरे धीरे ऐड होते चले गए। मान लीजिए 300 पुराने थे, 200 फिर ऐड हो गए। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में ही बहुत सारा हमें बच्चा मिल जाएगा, क्योंकि उस एरिया पे डिपेंड करेगा, मार्केटिंग पे डिपेंड करेगा, और आपके जो कॉलेजेस में कितना आउट ऑफ स्टेशन का बच्चा है उस पर भी डिपेंड करेगा। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला है, रिटेंशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड स्पेशली क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेज होते हैं। आपने बोला 4 साल तक भी बच्चे आपके साथ रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म स्टेज होते हैं, तो रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी हेल्पफुल। हाँ रीना जी, कुछ क्वेश्चंस जो और मैं समझना चाहूंगी, अगर हम बात करते हैं अपनी ओवरऑल सर्विसेज की, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट 9,000, हमने एक एवरेज एक प्राइस हमने पकड़ा है हर कमरे का रेंटल परस्पेक्टिव से। और दूसरा हमने दो सेगमेंट्स को हम केटर कर रहे हैं, पहले वी ओनली केटरिंग फॉर मेन एंड मे बी मेल स्टूडेंट्स, और इन दोनों के बीच में हमारा एक तो रेशो क्या रहता है, कितने हमारे पास बच्चे रहते हैं, कितने हमारे पास वर्किंग मेन होते हैं, इन दोनों के बीच का क्या हमारा रेशो रहता है, देन आई विल आस्क मे बी द अदर क्वेश्चन आफ्टर वी आर डन विद दिस। देखिए मैं पहले चाहूंगी कि जब संस्कृति आवास को जो भी खोलना चाहेगा, उसमें कॉलेज में मैं इतनी हेल्प हम लोग जरूर करते हैं कि हम कॉलेज में, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जाएंगे तो नो डाउट कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं उतना बिल्ड हो पा रहा होता, तो हम मीटिंग में खुद बैठते हैं, खुद कन्विंस करते हैं कॉलेज को कि ये हमारे कमिटमेंट्स हैं, इनको हम पूरा करेंगे। डायरेक्टर्स होते हैं कॉलेज के, तो आपको एक टाई अप करवा देंगे हम कि कॉलेज हमेशा आपको वो बच्चे दे। अपनी वेबसाइट पे भी आपकी वेबसाइट डाले कि आपका इस एरिया में आपका ये वाला खुला हुआ है, तो अपनी वेबसाइट पहले से ही बच्चों को दे देते हैं, जो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हॉस्टल की। तो उसके अंदर क्या है कि बच्चे जो आएंगे आपके पास, वो जितने भी आपके होते हैं। आपका एक फर्दर क्वेश्चन मेरे से कुछ और भी था शायद। कि पहले तो रीना जी मैं समझना चाहती हूँ, बिकॉज हमारी दो सेगमेंट्स हम केटर कर रहे हैं, एक तो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए मेन, एंड देन वी हैव स्टूडेंट्स। सो इन दोनों के बीच में टिपिकली हमारा क्या रेशो रहता है, एंड क्योंकि हमने एक रेशो की बात की जहाँ पे इंडिपेंडेंट रूम्स हैं, एंड देन वी हैव शेयरिंग जो डबल एंड ट्रिपल शेयरिंग पे होते हैं, सो विच आर दीज ऑडियंसेस सिंगल देखिए जनरली? ये जो रेशियो है ना, उसके लिए मेरे पास तो 700 जो है स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे आसपास सारे कॉलेजेस हैं। इट राइट, डिपेंड्स। फिर अलग, फिर दोबारा से मैं ये बात कहूंगी कि आज हम बैठकर ये नहीं कह पाएंगे कि आपने खोला है और आपको ये रेशियो मिलेगा। हमारी एक वर्किंग होगी उसके ऊपर कि जिस एरिया में वो लोग खोल रहे हैं, तो उस एरिया में कितने कॉलेजेस हैं, उनसे हमारा टाई अप कितना हुआ है। तो कॉलेज हमें बताता है पिछले साल की वर्किंग देखकर कि कॉलेज वालों की कि कितने आउट ऑफ स्टेशन के बच्चे आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सिम्बोसिस को उनसे मिली, मीटिंग करी, और उन्होंने बताया कि हमारे जो आउट ऑफ स्टेशन के बच्चे आ रहे हैं वो 250 आते हैं। किसी कॉलेज ने मुझे बताया 85 आते हैं मैडम, लोकल ज्यादा आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें जगह जगह से पता चलता है। कैरियर लॉन्चर जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे आते हैं, कैरियर लॉन्चर हो गया, टाइम्स हो गया, इस तरीके के आकाश हो गया मेडिकल के लिए। तो वहाँ बच्चे आउट ऑफ स्टेशन की जरूरत तो नहीं है ना कि सारे आउट ऑफ स्टेशन के, वो लोकल भी होते हैं आउट ऑफ स्टेशन के। तो ये हमारे डिपेंड करेगा उस समय पे कि किस एरिया में हम खोल रहे हैं, और हमें ऐसा ही एरिया लेना चाहिए जहाँ कॉलेजेस आसपास हो, सक्सेस करना है तो।
नहीं तो आप फिर बस लगाएंगे, आप छोटी गाड़ियां लगाएंगे बच्चों को लाने ले जाने के लिए। जितना दूर होगा, बच्चे नेचुरली चाहते हैं कि क्लोज एरिया मिल जाए, हमें पास में ही मिले। तो ये चॉइस करनी पड़ेगी आपको कि कौन से कॉलेजेस हमारे पास हैं, कितनी कंपनीज हमारे पास हैं। हो सकता है कॉलेज के बच्चे कम हो, कंपनीज के बच्चे ज्यादा मेंस मिले आपको, तो आप मेंस का ज्यादा रखेंगे, ठीक है। और अगर कॉलेज में के बच्चे ज्यादा मिल रहे हो, आपकी बिल्डिंग कॉलेज के बच्चों से भर गई है, तो आपको ये तो उस समय डिपेंड करता है, जैसे एक इलेक्शन टाइम होता है ना, कि इलेक्शन में कितनी वोटिंग किसकी हो रही है। तो हम पहले से एडमिशन से पहले ही सारी मार्केटिंग कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज कितना बच्चा हमें देंगे, और यही हमारा कमिटमेंट होता है उनसे कि हम इतने बच्चों को रखेंगे। तो रेट्स को नेगोशिएट भी कर लेते हैं। और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो काफी अच्छे, जैसे सिम्बोसिस है, उसके अंदर बच्चा काफी अच्छे हाई लेवल का आता है। जैसे जेएसएस का बच्चा इतना हाई लेवल का नहीं होता। तो हमने जैसे अलग अलग कैटेगरी में करते हैं कि ट्रिपल सीटर के बच्चे जो हैं वो 9,000 में रहेंगे। अगर एसी रूम रहेंगे तो थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा। फ्रिज रख देंगे, वॉशिंग मशीन रख देंगे तो थोड़ा और चेंज कर दिया जाएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी कितनी डिसीजन मेकिंग है कि आप बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं। उस समय जो मार्केटिंग पे बैठता है, जो पेरेंट्स से बात करता है, वो ये पहचानता है। पेरेंट्स को देखकर, हम लोगों को तो काफी टाइम हो गया, पेरेंट्स को देख के हम समझ सकते हैं कि वो बच्चा अपना कंफर्टेबल जोन में रखना चाहता है, तो हम डीलक्स रूम ऑफर कर देंगे उसको। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई एक नॉर्मल, मैं मिडिल उसका हूँ, तो हम ट्रिपल सीटर ऑफर करेंगे। तो ये मैं नहीं आज कहूंगी कि एकदम से एग्जैक्ट यही होते होएगा, लेकिन जितना डिपेंड करेगा एटमॉस्फेयर पे कि हमारा, और हम उनके साथ ही रहेंगे, हमारी टीम रहेगी, जो एक्सपीरियंस मैनेजर हैं उनको भी रखेंगे साथ में, ताकि आपको एक बारी 1 साल 2 साल हम उसको प्रॉपर आपका चलवा दें। जब आपका चलने लगता है और कॉलेज वालों को, और बीच में आकर हम लोग को आपकी क्वालिटी को मेंटेन करवाएंगे, कॉलेज वालों की फीडबैक लेंगे, तो आपको 2-3 साल में सेटअप हो जाएगा कि हाँ भाई, आप इत्मीनान से अपने टेबल पे बैठेंगे, आपको बच्चे खुद ही ढूंढ ढूंढ के आएंगे। राइट, आई थिंक दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे मैं भी बता रही थी, जो भी हमारी लोकेशंस होती हैं वो डिटरमाइन करेंगी कि हमें किस तरीके का टारगेट ऑडियंस आता है। वी आर वेरी क्लोज टू कॉलेजेस एंड जहाँ पे स्टूडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारा स्टूडेंट इनफ्लो ज्यादा होगा। इफ यू आर क्लोजर टू कॉर्पोरेट्स हब्स जहाँ पे प्रोफेशनल ज्यादा है, तो हमारा प्रोफेशनल का फ्लो ऑब्वियसली हमारा ज्यादा रहेगा। So Reena ji, I'll come to another question also. अगर हम देखें ना, जैसे आपने बोला, you will also work with the partners, जितनी भी locations हैं उसके हिसाब से आप रेकी करेंगे वहाँ पे किस चीज का potential है, आप collaborate भी करेंगे to help them bring maybe initial students और professionals। तो अगर हम ये एक एवरेज लगाएं, आपने बोला you started with almost about 200 students जो आपने शुरू किया था, अब 800 से ऊपर बच्चे हैं जो करते हैं। अगर हम एक एवरेज टाइम लें, कितना टाइम लगता है शुरुआत में, एंड स्पेशली हमारे जो ये बिजनेस स्टूडेंट का है, हाउसिंग का, ये बड़ा सीजनल होता है। जब हर साल जो एडमिशन होते हैं उस टाइम पे आपके एडमिशन आपके ज्यादा होते हैं। तो हाँ जी। एक तो मैं जानना चाहती थी कि क्या टाइम लगता है हमें, कितने मिनिमम स्टूडेंट से हम शुरू कर सकते हैं ऑन एन एवरेज, एंड कितने स्टूडेंट तक हम विद इन 1 ईयर हम पहुंच सकते हैं। और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूंगी, सबसे राइट टाइम क्या है शुरू करने का। और मैं ये भी समझती हूँ हाँ क्योंकि ये जी। हमारा इंटीरियर का काम होगा, इसमें कम से कम 2 से 3 महीने उसको बिल्ड करने में लगेंगे, सो दैट इट कैन बी सूटेड फॉर द वेरियस फैसिलिटीज व्हिच द हॉस्टल विल प्रोवाइड। तो इसमें कितना क्या राइट टाइम होगा शुरू करने का। एंड आई वाज सीइंग वन क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये टाइम बड़ा डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट होम, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। तो इस सिचुएशन में अभी जो आपका जो करंट हॉस्टल है, वो उसका भी अभी क्या डिमांड है। आई थिंक ऑल दीज विल हेल्प हाँ अस जी। इन अंडरस्टैंडिंग और इसके अंदर देखिए, ये जो आज एक मान लीजिए किसी ने बिल्डिंग ली और कोरोना का टाइम आया, लॉकडाउन हो गया, फिर ऑफिस अब 7 तारीख से, आज से ऑफिस कल से खुलने शुरू हो गए, तो आप जरूरी नहीं है कि कॉलेज के बच्चे ही रखेंगे। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि 3-4 महीने हमारा ऐसा कॉलेज का नहीं चल पा रहा, तो आप ऑफिस के भी मेंस रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, वर्किंग मैन भी रख सकते हैं। आपका ये जो डिमांड है पीजी की, ये जो हॉस्टल की डिमांड है या पीजी की डिमांड है, ये कभी कम नहीं होती है। अगर आईटी कंपनी है तो उससे भी टाई अप करके हम, कि आपके जो सीनियर लेवल्स के लोग हैं वो डीलक्स रूम ले सकते हैं, या नॉर्मल जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो ले सकते हैं। ये देखिए डिपेंड करेगा आपकी खुद की वर्किंग, खुद की आपकी वर्किंग, और खुद का आपकी मेहनत कितनी है उसके ऊपर, है ना। और नो डाउट कोरोना में सारे बिजनेस वो हुए हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे जो बच्चे गए थे
उनका सामान रखा हुआ है, तो हमने मिनिमम चार्जेस लिया बच्चों से, फूड का हटा दिया, फैसिलिटीज, फिर भी हमने रेंट पे अगर लिया बिल्डिंग तो हमने रेंट निकाला है बच्चों के लिए कि उनका लगेज रखा है। वो चाहते थे कि दो तरीके के बच्चे, एक कहते हैं कि हमारा सामान लगेज रूम में रख दीजिए, हमें बस जगह मिल जाए आगे आकर, क्योंकि वो ढूंढना नहीं चाहते ना, एक हाँ बार जी, ढूंढ चुके हैं। बिल्कुल। और कुछ बच्चे होते नहीं, हमें पर्टिकुलर यही रूम चाहिए जो रूम हमने सेलेक्ट करा था, तो उसको पे करते भी हैं उसके लिए। तो हाँ, अगर हम डरेंगे कोरोना से, देखिए ये टाइम बहुत अच्छा है, मैं जो भी वर्क करना चाहते हैं उसके लिए बहुत, मेरे लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जब होता था तो मैं बहुत बिजी रहती थी 700-800 स्टूडेंट के बीच में, तो मैंने कभी इतना नए सिरे से काम आज जो मैंने दोबारा से कर रही हूँ कि कोरोना में हम कॉलेजेस से पुराने बच्चों को अपनी कॉल करके उनसे इंटीमेट होते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, तो उनको एक फैमिली टच मिलता है कि हाँ जब हम आएंगे तो हमारे लिए कोई बैठा है जो हमारे को हॉस्टल देगा, हमें बच्चों के लिए जगह देगा, कोरोना में हाइजीनिक और सारा सैनिटाइज करवाना बिल्डिंग्स को, ये सब करेगा। तो हम लोग तो, हमारा पुराना है, अब जब नए आएंगे तो नए, अभी जैसे जुलाई में अभी कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, अब खुलेंगे ये सितंबर में, अगस्त में खुलेंगे, है ना। तो जो भी अपनी बिल्डिंग देख रहा है या चाहता है इस तरीके का करना, या उस पर बिल्डिंग है, तो वो कॉलेजेस देख ले, उसके आसपास कोई कॉलेज है, कोई कंपनीज हैं, तो स्टार्टिंग अगर हल्के से भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। फिर एक्सपीरियंस बनेगा, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है आपका, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, थोड़ा एक हैबिचुअल हो जाओगे, हॉस्टल चलाने के मोड में आ जाओगे कि हाँ थोड़े बच्चे आ रहे हैं, थोड़े जा रहे हैं, थोड़े मैन वर्किंग आ रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस, आपको भी तो अपना स्टाफ रखना है, आपने उसको सिखाना है, हमने भी सिखाना है। तो मुझे लगता है ये बड़ा राइट टाइम है कि आप उसको सीख सके, नहीं तो एकदम से रश आएगा और आप संभाल ना पाओ। अभी आपको धीरे धीरे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आएंगे। मेरा अभी फरवरी मार्च अप्रैल में जब कॉलेज खुले हैं तो पूरा बच्चा आया है, कुछ ऑफलाइन हुए। तो आपके कॉलेजेस कितने हैं, मेरे हिसाब से तो जो भी खोलेगा वो एक बार हम लोगों से बात कर लेगा कि इतने कॉलेजेस है, हम भी उस पर उनकी वर्किंग बताएंगे कि कितना कर सकते हैं। बट दिस इज द राइट टाइम, अगर इनको मार्केटिंग करनी है तो ये बहुत बढ़िया टाइम होता है, अपना डिजिटल मार्केटिंग वाला लें। संस्कृत बिल्कुल। पास का आप अगर हमसे लेते हैं फ्रेंचाइजी, तो अपना डिजिटल का एक रखें, अपनी फेसबुक लिंक रखें, इवन हमारी भी फेसबुक लिंक है, वो भी हम शेयर करेंगे। बच्चों ने फीडबैक क्या दिया है, पेरेंट्स ने क्या फीडबैक दिया है, तो जब भी आप कहीं पे खोलेंगे तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं, जिन पेरेंट्स ने बोला है, जिन बच्चों ने फैसिलिटीज के लिए बोला है, उससे आपके पास मार्केटिंग आपकी खुद ब खुद हो जाएगी। आप एक हाँ डिजिटल जी। रखेंगे, अभी से अगर आप शुरू करते हैं तो आपके लिए अगस्त सितंबर में बहुत अच्छा टाइम है। और अभी 3-4 महीने आपके पास हैं, जिसके अंदर आप अपनी मार्केटिंग करवाएं, डिजिटल मार्केटिंग करवाएं, अपनी बिल्डिंग को पूरा अपडेट करवाएं, बिल्डिंग ढूंढें, इस समय कम रेट पे भी मिल जाएगी आपको, कम किराए पे भी मिलेगी, हाँ क्योंकि जी, इस दैट्स समय वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ लोग लेना ही नहीं चाहते, बिल्डिंग बहुत कम में रेट पे मिल जाएगी आपको। वेंडर्स भी बहुत सस्ते, जो पहले तो हम ही लोग आपको वेंडर्स दे देंगे जो आपको रिजनेबल रेट पे मिले, फिर आपको स्टाफ भी रखना है, वो भी कम रेट पे मिलेगा। इस समय अगर इस समय काम शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर लेंगे। श्योर रीना जी, मैं आप क्विकली दो चार क्वेश्चंस और लूंगी बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके ओके तो हाँ जी, सॉरी। आई विल टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम सौरभ जी पूछ रहे हैं, मिस्टर सौरभ वर्मा। एक तो वो पूछना चाहते हैं जो हमारी स्टाफ की कॉस्ट होती है, बिकॉज लॉट ऑफ सर्विसेज हमारी आउटसोर्स्ड है, हमारे वेंडर्स हैं वो हैंडल करते हैं, बट जैसे आपने बताया कुछ स्टाफ आपका भी है अपना, तो टिपिकल हमारी स्टाफ की जो डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होती है। एंड वेंडर्स का हमने शेयर किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द वेंडर्स लाइक फूड हो गया, लॉन्ड्री हो गया, ये सारे हमारे वेंडर्स हमारे आउटसोर्स रहते हैं। और ये भी आपके टाइप होंगे, दीज टाइप्स विल बी एक्सटेंडेड टू द पार्टनर, जो भी आपके टाइप्स है वो एक्सटेंड करेंगे आप पार्टनर्स को। बट अगर हम स्टाफिंग की ओवरऑल कॉस्ट ले, हमने एक 10% का कंपोनेंट लिखा था प्रेजेंटेशन में, जहां पे आप कह रहे हैं कि स्टाफ 10% जाता है। तो ये स्टाफ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, किस तरीके का स्टाफ रहता है, एंड एवरेज हमारा जो इसमें सैलरी ब्रैकेट रहता है वो क्या होता है? और इसमें दो तरीके से है, देखिए जैसे मेरे पास ज्यादा बच्चे थे तो नेचुरली मेरा स्टाफ ज्यादा था, मेरी 4 बिल्डिंग साथ हाँ में जी। एक ही कैंपस में थी। लेकिन एक बिल्डिंग अगर है और एक एफिशिएंट बढ़िया सा आपको आपके लिए एक एम्प्लॉय मिल जाता है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। और आप देखिए कम बच्चे होते तो अकाउंटिंग आप भी कर सकते हैं कि कितनी पेमेंट आई है, कितना इनका रिन्यूअल्स है, कितना दे रहे हैं, कितना क्वार्टर ले रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं। वैसे तो पूरा ईयरली का दिया जाता है इसके अंदर। अदरवाइज क्या है कि आप अकाउंट का अगर आप खुद देख सकते हैं तो आपको एक मैनेजर और एक वार्डन,
और 2 हाउसकीपिंग के। ये डिपेंड करेगा आपके कितने रूम्स हैं। हाँ अगर जी, मान लीजिए 50 रूम्स हैं तो 2 आप हाउसकीपिंग के लड़के रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा ऐसे। ये डिपेंड करेगा ना कितना बच्चा है हमारे पास। और बिल्कुल। तो शुरू में हम कम लोग रखेंगे, जैसे कम हमारी लोग रखें, कम लोग रखें, कम। एनरोलमेंट बढ़ती जाती है, वी कैन ऐड स्टाफ। मैं चाहूंगी कि आप कम से शुरू करें, जिसमें आप पहले देखें कि आपका फुटफॉल कितना आ रहा है। इसके लिए आपको लेकिन मार्केटिंग सॉलिड करनी है। कॉलेजों से मिलिए, कॉलेज खुल चुके हैं, मतलब कोई ना कोई स्टाफ बैठा हुआ है। कॉलेजों से मिलिए, कंपनी से मिलिए। फिर आप एक दिमाग में रख लीजिए कि हाँ भाई इतना बच्चा है, इतने लोग आ सकते हैं मेरे पास। उसी तरीके से जगह लें। Ma'am, on the staff side, I'd like to add, because most of the services are outsourced. Please remember, all the हम्म। services are outsourced. So we just need admin staff which can manage the vendors. That's why the staff requirement, हाँ as Reena ma'am also said, two हाँ जी। wardens, 2 housekeeping, and 1 manager, and we're good to start. नहीं, कब ऐसा है ना, कम अगर बच्चे हैं, देखिए अगर बच्चे हैं तो अगर हम वेंडर को ही बोलते हैं कि कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, और बच्चे मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे हैं, तो अगर आप वेंडर फूड इन सब पे लेते हैं, और कम कम की बात कह रही हूँ, ज्यादा है तो आपको फूड इंचार्ज भी रखिए, आप मैनेजर भी रखिए, आप कलेक्शन वाला भी रखेंगे, अकाउंट वाला देखेंगे, एक अकाउंट वाला होगा, एक डिजिटल वाला होगा आपका, जो आपकी मार्केटिंग करेगा सारी। जी जी, और correct. कम है, देखिए कम है और आपके पास पैसे अगर मान लीजिए कम आ रहे हैं, तो नेचुरल खर्चा तो आप उसके अकॉर्डिंगली करेंगे ना। हाँ जी. हेल्पफुल। रीना जी, एक दो क्वेश्चन और, क्योंकि हमने एक इसमें कॉस्ट लगाई भी हुई थी। आपने इसमें जो हम पेमेंट लेते हैं अपने जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, हमने एक फी उसमें रखी हुई है डिपेंडिंग ऑन द रूम टाइप। इसके अलावा एक हमने इलेक्ट्रिसिटी का कंपोनेंट देखा था जो आपकी स्लाइड पे था, जो 25,000 रुपए है, वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, एंड इज दैट टेकन ओवर एंड अबव द रेंटल? इलेक्ट्रिसिटी का तो हमारे सब मीटर्स लग जाते हैं। ओके। जो सब मीटर्स, देखिए फीस में हमारा लाइट पंखा बिजली तो इंक्लूड होता है, क्योंकि उसकी यूनिट्स कोई ज्यादा नहीं होती। हाँ जी। यहाँ आता है एसी का, कूलर्स का, गीजर का, फ्रिज का, तो सब मीटर हमारा बाहर लगा हुआ है, ठीक है। और सब मीटर कमर्शियल जो है हमारा 8.5 रुपए है, 8.5 या 9 रुपए पड़ता है। तो आप बच्चों को बताते हैं और आप सब मीटर लगा दिया, तो वो जो सब मीटर में लाइट पंखा बिजली नहीं, आपका उसका इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो कनेक्ट कर देता है कि इस इसके तार हमारे वायरिंग ऐसे है। तो उसमें क्या होगा कि जो भी रीडिंग आएगी आप उसका इंटू 9 रुपीज लेंगे, 8 या 9 रुपीज जो भी आपके वहाँ कमर्शियल रेट होगा, उसके हिसाब से बच्चा आराम से दे देता है। अच्छा 3 बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए आपका 1000 आया है ना, या एसी का 2000 आ गया एक कमरे का, 3 लोग हैं, तो कितना 700 600 रुपए भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये बाकी हमारी सर्विसेज साथ में इंक्लूडेड है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं, लाइक एयर कंडीशनिंग आपने बोला, दैट्स वेयर स्टूडेंट्स हैव टू गिव। लास्ट क्वेश्चन रीना जी जो मैं लेना चाहूंगी वो लोकेशंस के ऊपर है, कौन सी सिटीज में हम जाना चाहते हैं बाद ऑल्सो, और अगर हम दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं, कौन कौन से लोकेशंस अभी आपको लगता है बहुत पोटेंशियल है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी की भी डिमांड है और ब्रांड भी लोग जानते हैं, तो कौन सी ऐसी जगहें आप बताना चाहेंगी दिल्ली एनसीआर में आप जाना चाहेंगी? और इसके अलावा अगर कोई रिक्वायरमेंट दिल्ली एनसीआर से अगर बाहर की आती है, आप उसके लिए तैयार हैं भी डिस्कस करने के लिए, बिल्कुल या? बिल्कुल, आप अगर मेरठ में खोलना चाहते हैं, आप मेरठ में भी काफी कॉलेजेस हैं, है हाँ ना। जी बिल्कुल। इस तरीके से आप बेंगलोर में खोलना चाहते हैं, वहां पे भी कॉलेजेस हमारे है, वहाँ तो पूना में हब है, हाँ जी। तो वहां पे आप खोल सकते हैं। वहां पर आपको काफी क्राउड मिलेगा बच्चों का। आप फैसिलिटीज थोड़ी अप कर दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा क्राउड मिलेगा। जो चीज आस पास के एटमोसफेयर में नहीं है, वो चीज अगर हम देते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, किसी ने ऐसे खोला था, तो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रही, थोड़ा दूर थे तो पिक एंड ड्रॉप, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगा कि पिक एंड ड्रॉप भी है जी। टिफिन सर्विस, कई बार हम लोगों ने, एक कॉलेज को थोड़ा दूर है तो उसको टिफिन सर्विस दे दी कि लंच में टिफिन जाएगा। तो बहुत कॉस्टिंग नहीं आती उस सबकी, लेकिन बच्चों को एक फैसिलिटी मिल जाती है कि हाँ ये हमारी की, उस समय डिपेंड करता है कि हम क्या फैसिलिटी, हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ क्या चल रहा है इस समय वहां पर। Absolutely. मतलब जिस लोकेशन पे हम खोल रहे हैं उसके हिसाब से अपनी फैसिलिटीज एंड सर्विसेज हम हाँ, थोड़ी बहुत tweak जहाँ कर सकते कॉलेजेस हैं, हाँ इस पे हम वर्किंग कर लेते हैं। जहाँ जहाँ कॉलेजेस हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा है आपका, वहाँ तो एमईटी भी है, सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पर, आप कॉलेजों से बात कर सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिसके अंदर आपका वो भी नहीं है, हॉस्टल ही नहीं है, जो वो हैं। हॉस्टल चाहते हैं बट मेनी वो मेनी रन नहीं। कॉलेजेस, बल्कि बहुत
And DOMA is a big problem. Admissions बहुत होते हैं, but you don't have enough beds in the hostels, and हाँ, everybody has to अगर look at बिल्डिंग accommodation बिल्डिंग है outside. तो हाँ बिल्कुल, जिनके पास हॉस्टल्स नहीं है आप उनको अगर कवर करते हैं उन कॉलेजेस को, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है इस समय। Absolutely. Thank you so much, Reena ji. I think this was very well explained, and a lot of people who are joining and have joined and also watching live, I hope they have got clarity on the entire business model. And साथ में मैं ये भी request करूंगी everyone who wants to discuss further with Reena ji या existing उनकी जो facilities नोएडा में है, वो भी अगर उसका कोई टूर करना चाहता है, देखना चाहता है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा anybody who wants to do that, you're more than welcome. और कोई भी हम हफ्ते में, इस महीने में, as things have started unlocking, कोई भी दिन जब आपको लगता है आप विजिट करना चाहते हैं, ये टूर हम अरेंज कर सकते हैं. And for reasons you want to stay back in your home, we can also arrange maybe a virtual tour जहाँ पे एक वीडियो हम आपका we can show you over a Zoom meeting. And रीना जी, क्योंकि हम खत्म कर रहे हैं अपना आज का वेबिनार, कोई भी मैसेज आप देना चाहती हैं सब लोगों को जो आपसे सुन रहे हैं, हमारे वेबिनार पे हैं या फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, anything that you want to give as a last message, closing message to all our बिल्कुल, investors? इस समय अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो सबसे ज्यादा दो ही चीजों में है, एजुकेशनल और आपका ये आईटी कंपनीज जो ऑफिस के लोग होते हैं, तो इनका ये बिजनेस कभी रुकता नहीं है। मैं 10-12 साल से हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि आगे के 10 साल भी रुकूंगी मैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपको एजुकेशन कभी रुकनी नहीं और ऑफिस कभी रुकने नहीं। तो ये आपका बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया जो मेरे तजुर्बा रहा है वो यही है कि आप एक बार बस गए, आपने स्टार्ट कर दिया तो कोई भी आप रुक नहीं सकते, इसकी आप चेन ही चेन खोलते जाएंगे आप। हाँ जी, absolutely. And फिर word of mouth से you also gain, क्योंकि जो लोग रहते हैं वो अपनी references आगे भी देते हैं back in their hometowns and to their friends who wants to देखिए, join. अगर आप नया So खोल रहे, अगर आप एक सेंटेंस बोलते हैं, अगर आप नया खोल रहे होते तो आपको कोई नहीं पहचानता। आप कोई फ्रेंचाइजी लेके खोलेंगे तो संस्कृति आवाज ऑल इंडिया ऑल लेवल पर चल रही है। हमारे दुबई से भी बच्चे आए हैं, बाहर से भी बच्चे आते हैं, तो एक फेमस जब कोई चीज ले लेते हैं ना तो शायद थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। वर्किंग तो रहती है, मेहनत तो है ही, लेकिन आपको एक सपोर्ट हो जाएगी कि हाँ भाई पूरा मैनेजमेंट टीम, पूरा आपका सिस्टम, सब कुछ हम लोग दे पाएंगे आप। Sure. Thank you so much, Reena ji, for coming in, and thank you all our friends for staying with us for the last 1 hour, over 1 hour now. And we'll come back to all of you. And Shruti, have we fixed any date where we can get meetings done or calls done rather? एक कोई भी दिन हम अगले हफ्ते में लेंगे जहाँ पे हम आप सब लोगों की रीना जी से बात कराएंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सब हम करेंगे. श्रुति, डू वी हैव अ डेट? No, nothing as such. रीना जी, कोई डेट आप बताना चाहेंगी? कोई डेट अगर कन्वीनियंट है आपके लिए? मैं इस समय क्या है, हम कंफर्टेबली जो भी मेरे से बात करना चाहेंगे आप एक बार ये टाइप करवाएं और मुझे वो डेट बता दें, देन मैं भी फ्री होकर उनके अकॉर्डिंगली हम वो कर लेंगे अपना। Sure, Reena ji, we'll get you connected with our prospective partners. And thank you again for being with us. And I will now request Shruti to kindly take over. And we have some more events, friends, which are coming in the day and tomorrow. Shruti, can we have the slides on the screen, please? Thank you, Sonia ma'am. Thank you, Ms. Reena, for joining in today. Thank you, Anshul, for taking us through the presentation. So friends, you can get in touch with us on our hotline number, which is 97176838838. You can also save this number on your WhatsApp, so you'll get regular updates from our site. And these are few our social media handles: Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn, where you can find us and follow us for regular updates. This is our management team's LinkedIn profiles, Mr. Gaurav Maria and Ms. Sonia Chaudhary. You can also follow them there for updates. And as mentioned, we are hosting 100 Days, 100 Cities shows. Today we are hosting for Bangalore City, which begins at 7 p.m. and it will be a 1.5 hour show where we'll be virtually representing brands from different categories. You may join us today through Facebook Live at 7 p.m. sharp on our Facebook handle. And tomorrow we are representing a brand under the business opportunity over chai at 12 noon, which is Paradise Biryani, which is a legendary biryani brand from Hyderabad and operating since 1953. Please join us tomorrow, 12 p.m. and let's have a virtual representation for the brand as well.
I Thank would you, again Shruti. like I'd to like thank to add, friends, this is the first time ever we're launching this brand, Paradise Biryani. And I would say this is a legacy. This is more than a 70-year-old company. And for the first time, they're launching and coming on the webinar tomorrow. They're looking for a franchisee invested company operations model. सारे के सारे operations company manage करेगी. And investors जो होंगे वो passive investors होंगे. And there is also some fixed return which the company would offer. So anyone who's looking at investing, while there are specific states जहाँ पे company जाना चाहती है, but क्योंकि operationally आपको involved नहीं होना है, so even sitting anywhere, you can invest in the opportunity. I will request everyone who's interested can log on to our Facebook page of Franchise India Brands और आप register कीजिए. नहीं तो इस number पे भी आप call कर सकते हैं and you can get registered for tomorrow's webinar. Sorry, you can go ahead, Shruti. Thank you, ma'am. And now with this, we would proceed for the closing. Thank you, friend, for being with us for past 1.5 hours. Thank you.